So today we are going to discuss about modern periodic law and modern periodic table, which is also known as long form of periodic table. तो ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कि एटॉमिक मास को क्लासिफिकेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होता. दिस आइडिया वाज गिवन बाय हेनरी मॉसली इन द ईयर 1913. He believed that, or he stated that, atomic number and not the atomic mass is the fundamental property of an element. Fundamental property क्या है? What should be the property, or which property we should consider for classification of elements? Should we use atomic mass or we should use atomic number? Atomic number. Atomic number. Atomic number ही क्यों, वो थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं. Why atomic number? If you look at these elements, sodium, magnesium, potassium, calcium, aluminium. Atomic number of sodium is 11, magnesium 12, potassium 19, calcium 20, aluminium 13. You all know that atomic number is number of protons. Atomic number किसका number? Number of protons which Number are of- equal to number of electrons. Good. Number of protons and number of proton is equal to the number of electron. So once we know atomic number, we are knowing number of proton as well as number of electrons. And if I ask you, in an atom, which particles are present inside the nucleus? Proton and neutron. Protons and neutrons are present inside the nucleus. And which particles are present in the orbits or shells? Electrons. Electron. Now, if I ask you, which particles take part in chemical reaction? Electrons. Electrons. So, which electrons? Valence Valence electrons take part in chemical reaction. Valence electrons take part in chemical reaction. So, chemical properties are decided by which particles? Electrons, protons, or neutrons? Electrons. Electron. And atomic mass is due to the mass of protons and neutrons. एटॉमिक मास जो अब तक साइंटिस्ट यूज कर रहे थे क्लासिफिकेशन के लिए, मेंडलीफ ने यूज किया, न्यूलैंड ने यूज किया, डोबेनियर ने यूज किया. तो एटॉमिक मास किसका मास होता है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो क्या एटॉमिक मास केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकता है कि? नो. नहीं सर. तो कौन सा पार्टिकल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रॉन्स. और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? Valence electrons. Valence electrons. Okay. And we can know about valence electrons from electronic configuration. From electronic configuration. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग को पता कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2.8.1. 2.8.1 या बोल सकते हैं हम लोग 281. मैग्नीशियम 282. 282. पोटाशियम 288. 2881. Calcium
2882. 2882. Aluminium 283. 283. So by knowing about atomic number, we can know about number of electrons. And once we know number of electrons, from that number of electrons, we can write down electronic configuration. From that electronic configuration, we can know about valence electrons. We can know about what? Valence electrons. तो ये Na के साइड में जो आप 11 लिखा है ये तो एटॉमिक नंबर है ना? एटॉमिक नंबर, ये लोअर लेफ्ट लोअर सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर होता है. ओके, सो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करने वाला पार्टिकल्स कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स? Electron. इलेक्ट्रॉन. एंड उसमें भी कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? विच इलेक्ट्रॉन्स? Valence Valence electron. electron. Valence electrons. Okay, so valence electrons determines the chemical properties. So if two elements are having same number of valence electrons, they are said to be having similar electronic configuration. They said to have similar chemical properties. तो दो एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो डिसाइड कर सकते हैं हम लोग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर से. सो वी कैन क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टी. Because using atomic number, we can know about number of electron, we can write down electronic configuration, from that we can know about number of valence electrons. तो अब आप मुझे बता दो, ये डिस्कशन के बाद आप मुझे बता दो कि सोडियम का प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है? Potassium. पोटाशियम. कैसे बोल सकते हो आप? सोडियम एंड पोटाशियम का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा है. So electronic Because both have configuration. same valence electrons. They have similar electronic configuration and they have same number of valence electrons. Sir, Magnesium लेकिन configuration तो same नहीं हुआ ना. Potassium में एक 8 भी है. similar. If two elements are having similar electronic, कोई भी दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता ही नहीं. ठीक है, दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो मैग्नीशियम जैसा एलिमेंट कौन सा है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसा है? आउट ऑफ दिस 5? कैल्शियम. हाउ कैन यू से दिस? वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या एल्यूमिनियम का केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम से मैच करता है क्या? No sir. ठीक है, कैसे बोल सकते हो ये बात आप? सिर्फ उसी का ही वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट इज अंडरस्टूड बाय दिस डिस्कशन? इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? क्या है रिजल्ट? कि वी हैव अंडरस्टूड दैट atomic number is fundamental property compared to atomic mass. Which is more fundamental, atomic mass or atomic number? Atomic number. Atomic number. And so we should use atomic number for classification of elements, not atomic mass. Is it clear? We should use what? Atomic number, not atomic mass, because atomic mass is the total mass of protons and neutrons, and they are not taking part in chemical reaction. Have you understood? Yes, sir. तो देख लो आप, हेनरी मोसेली को देख लो, याद रहेगा? बच्चा ही लग रहा है कि नहीं पता? इससे बड़ा तो हमारे पास स्टूडेंट्स है बहुत, देखने में इससे मैच्योर लगेगा.
So in which year he classified elements? 1913. 1913. 1913. अब मैं ये क्लास जो है आज वाला वो वर्ड टू वर्ड भी समझा देता हूँ क्योंकि मटेरियल से भी आपको समझना जरूरी है। इसका रिकॉर्ड मिल नहीं रहा, आज हम लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका। ओके। In the year 1913, Henry Moseley believed that atomic number and not atomic mass is the fundamental property of an element. And according to him, atomic number must form the basis of classification of elements in the periodic table. So, सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया कि क्लासिफिकेशन के लिए एटॉमिक नंबर यूज करना चाहिए, एटॉमिक मास यूज नहीं करना चाहिए? हेनरी मॉसली in the year 1913. In the light of above observations, Moseley gave modern periodic law, which states that. तो मॉसली ने ये भी बात बोला कि एटॉमिक नंबर यूज करना चाहिए और ये समझाया कि एटॉमिक नंबर यूज करने से भी प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। जैसे पहले वाला साइंटिस्ट लोग ने बोला था, न्यूलैंड ने, कि एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। फिर मेंडलीफ ने भी बोला था, इफ वी अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन सर्टेन इंटरवल। था कि नहीं है डिस्कशन में? तो मॉसली ने बोला कि एटॉमिक नंबर यूज करने से भी प्रॉपर्टीज रिपीट होता है कुछ रेगुलर इंटरवल में, तो उसी को लॉ बना दिया। स्टेटमेंट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल। जैसे ये एलिमेंट हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर आपको पूछा जाए लिथियम का प्रॉपर्टी किस किस जैसा है? सोडियम। सोडियम, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट हुआ कि नहीं? हाँ सर। अगर हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, ये वहां पे नंबर है इसके। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर मैं लिथियम से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लिथियम, लिथियम को देता हूं नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद उसी के जैसा एलिमेंट आ गया कि नहीं? हाँ। हाइड्रोजन को अगर मैं 1 नंबर देता हूं और हीलियम हो गया 2, तो 2 के बाद सेम एलिमेंट रिपीट, सिमिलर एलिमेंट रिपीट हो गया कि नहीं? सिमिलर। वैसे हाइड्रोजन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे, लेकिन सिमिलर कैसे बोल सकते हैं? सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और सॉरी, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 21, एंड सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, तो सिमिलर एलिमेंट्स रिपीट हुआ कि नहीं? हाँ सर। और ये जो गैप है जिसमें रिपीट होगा, जिस गैप में ये एलिमेंट्स रिपीट होगा, वो गैप है 2, 8, 18 एंड 32। ये वो फिक्स्ड गैप है जिसके बाद एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। So Moseley said that properties of the elements are periodic function of their atomic number. This means that when the elements are arranged in order of increasing atomic number, the elements with similar properties are repeated at regular intervals. और वो interval कौन सा? 2, 8, 18, 32। और इनको साइंस में मैजिक नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर। हाँ, तनिक्स पूछो। सुना कि मैजिक नंबर क्या बोला? ये जो नंबर है ना, 4 नंबर 2, 8, 18, 32, इनको मैजिक नंबर बोला जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसा नंबर मिला जिनके बाद
अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो इन गैप के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। अच्छा इससे मतलब इस 4 में ही होता है खाली। ये 4 नंबर के बाद रिपीट होता है प्रॉपर्टी। जैसे ये एग्जांपल में मैंने दिखाया ना, हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में गैप कितना है? 2 का। लिथियम और सोडियम के बीच में गैप कितना है? 8 का। हाँ आए समझ में? समझ गया। हम्म। वैसे इनका होगा। हाँ, उसके 18 का है, 32 का भी है। तो जो सोडियम है, सोडियम के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें वो दोनों का बीच में कितना गैप होगा? 18 का गैप हम दिखाएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। Moseley's views as stated above appear to be justified. So Moseley ने जो आइडिया दिया, जो व्यू रखा, वो जस्टिफाइड भी लगता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास ज्यादा जस्टिफाइड है। क्या हम समझाया था आप लोगों को? ज्यादा जस्टिफाइड क्या है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? नंबर। एटॉमिक नंबर। नंबर ना। नंबर क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने से प्रॉपर्टी सिमिलर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है कि नहीं? हाँ। We know that atomic mass of an element is due to the mass of protons and neutrons present in the nucleus of its atom. Since nucleus is located well inside an atom, it is not very much linked with the properties of the elements, particularly chemical properties. बात मैंने समझा दिया था आप लोगों को कि हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उनको केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट कर सकते हैं क्या? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेशन कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं? नहीं No, सर। sir. नहीं। These are related to the number of electrons and also the distribution of electrons in the different energy shell. ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी ज्यादा प्रॉपर्ली किसके साथ ज्यादा रिलेट करता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी शेल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है जो डिसाइड कर सकता है कि दो एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा है या फिर नहीं है। एटॉमिक मास से नहीं हो सकता। As the number of electrons in an atom are given by atomic number, not by mass number, therefore atomic number should form the basis of the classification of the elements in the periodic table and not atomic mass as predicted by Mendeleev. Have you understood? ये पूरा बात समझ में आ गया? क्या डिस्कशन हुआ यहाँ पे? किसको सिलेक्ट करना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। मॉडर्न सर। हाँ बोलो। सर पीरियोडिक फंक्शन वाला बात समझ नहीं है उसको सेंटेंस। पीरियोडिक उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द पीरियोडिसिटी जानते हो? सर पीरियोडिसिटी मतलब एक पीरियड के बाद रिपीट होना। हाँ, पीरियोडिसिटी में द प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट होना। मतलब कोई भी चीज पीरियोडिक कब बोलते हैं हम लोग? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब होता है, जब वो रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पे पीरियोडिक वर्ड के यूज किया गया प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन के लिए। अच्छा सर। आया समझ में? हाँ सर। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं हम लोग। इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स है, द वर्टिकल कॉलम्स, ये वर्टिकल कॉलम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहे लॉन्ग हैं, फॉर्म क्यों बोल? लंबा है। हाँ ठीक है। पहले का जितना भी क्लासिफिकेशन है उन सब से ये लॉन्गर है। इसमें कितना वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहा है? सर 18। 1 से लेकर 18 तक। These vertical columns are called what? Groups. क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप। एंड दीज हॉराइजेंटल रोज, जैसे ये एक रो है, ये वाला हॉराइजेंटल रो। दीज हॉराइजेंटल रोज आर सेड टू बी व्हाट? वर्टिकल को ग्रुप्स बोलेंगे, हॉराइजेंटल रोज को हम लोग बोलेंगे क्या? पीरियड्स। सो कितना पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? ये एक पीरियड हुआ कि नहीं? फर्स्ट वाला ये हाइड्रोजन हीलियम वाला, फिर लिथियम बेरिलियम वाला दूसरा पीरियड। तो ऐसे कितने पीरियड है? 1,
2 सर 9 3 4 5 6 7। अब किसी किसी को ये 8 और 9 लग रहा होगा, लेकिन ये काउंट 8 और 9 में नहीं होता, क्योंकि आप यहां देखो 57 से 71 एलिमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं सर। फिर 89 से 103 एलिमेंट है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो ये एलिमेंट्स को अलग से यहाँ प्लेस कर दिया गया। सर ये सब बाद में डिस्कवर हुआ था नहीं इसीलिए। नहीं नहीं, इनका प्रॉपर्टीज एकदम अलग था इनसे। मतलब वो ये जो एलिमेंट है इनका प्रॉपर्टीज थोड़ा एक जैसा है, यहाँ जो एलिमेंट है इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा है थोड़ा, यहाँ जो एलिमेंट है इनका प्रॉपर्टी थोड़ा एक जैसा है, और इनका प्रॉपर्टी जो नीचे अलग से दिया हुआ लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, इनका प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट था, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट था। आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेल भी अलग था, तो उनको अलग से प्लेसमेंट देना पड़ा। ओके। और कुछ कुछ बुक में ये भी लिखा हुआ कि अगर इनको मेन टेबल में प्लेस मिल जाता तो टेबल अननेसेसरीली लंबा हो जाता कि नहीं लोअर पार्ट से। हाँ सर। तो ऐसा बोला जाता है, हमको तो अजीब लगता है ये वाला रीजन, ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि अगर लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स मेन टेबल में ज्वाइन कर दिया जाए तो टेबल इतना लंबा हो जाएगा कि उसको एक पेज में प्रिंट करना इजी नहीं होगा। आज के डेट में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आज के डेट नहीं में है सर। प्रिंट तो आप कितना भी बड़ा करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा एक रीजन है, वो नॉन साइंटिफिक। और साइंटिफिक रीजन क्या है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है? है बाकी सबसे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे बाकी सब एलिमेंट से डिफरेंट है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कैसे पता चलेगा? तो जब हायर क्लास में आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF पैटर्न में लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है इनका आउटर मोस्ट शेल में F आता है, इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। ये अभी समझना मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्या बोलोगे इनको? सिर्फ इतना जान लो, ऑल दीज आर F ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट? एफ ब्लॉक F एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट। और एक और नॉन साइंटिफिक रीजन क्या? लेंथ। लेंथ। ओके। ये लोअर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वुड हैव बीन wide and would have created some problem in क्या? Printing, प्रिंटिंग। getting this table in one page। आया समझ में? तो इस टेबल को अगर देखो तो आप एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अब एक चीज और मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। लिथियम का क्या है? 2 1। सोडियम का क्या है? 2 8 1। पोटाशियम का क्या है? 2 8 8 1। सो एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है या डिफरेंट? सेम। सेम। सेम है। एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उनका वैलेंसी भी सेम होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है तो वैलेंसी भी सेम होता है कि नहीं? हाँ सर। कितना इसका वैलेंसी क्या होगा इनका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनका वैलेंसी क्या होगा? 1। 1। 1। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? 1। वो भी 1। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 है। तो क्या बता सकते हो इन सब का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। 2। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है। तो इन सब का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। 7। तो फायदा हुआ कि नहीं? एक एलिमेंट का नॉलेज होने से बाकी सब पे नॉलेज मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर। मिल रहा है ना? इसमें से ग्रुप 1 का जो मेटल्स है इनको अलग से नेमिंग दिया गया। ग्रुप 2 का जो मेटल्स है इनका नाम अलग है। ग्रुप 1 का जो मेटल्स है इनका नाम एल्कली मेटल्स। कौन सा मेटल? एल्कली मेटल्स। अल्काइल मेटल।
और ग्रुप 2 का जो मेटल है दे आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है तो सिमिलर कैसे हुआ? हाइड्रोजन का कंट्रोवर्सी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी एक डिफेक्ट है, और वो डिफेक्ट ये है कि इसमें भी हाइड्रोजन का पोजीशन उतना परफेक्ट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ प्लेसमेंट दे दिया, लेकिन पोजीशन फिर भी उतना जस्टिफाइड नहीं है। किसका पोजीशन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को मैंने क्या नाम बोला आपके लिए, क्या बताया? ग्रुप 1 एलिमेंट्स Alkali मेटल, मेटल्स, Alkaline. Alkali metal. एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 alkaline earth Alkali metals. earth metals. और ग्रुप 18 का नाम पता है? ग्रुप 18 का नाम Noble gas. Noble gases. नोबल गैस एलिमेंट। ग्रुप 17 का नाम पता है? Halogen. हेलोजेंस। ग्रुप 17 हेलोजेंस। ये जो ग्रीन में जो है दीज आर मेटलॉइड्स। क्या है ये? Metalloids. Metalloids are the elements which have the properties of both metals and Non-metal. non-metals। मेटल्स। ठीक है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो येलो वाला पोर्शन ये वाला है, दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, दीज आर नॉन मेटल्स। और यहाँ पे ये मेटल्स है, ये भी मेटल्स है, तो ये भी मेटल्स है। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स किधर होता है? मेटल्स होता है लेफ्ट में, मिडिल में, और ये बॉटम में भी सब क्या है? मेटल्स है। सो वेयर मेटल्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल? लेफ्ट, मिडिल एंड Left and left, Bottom. middle and bottom. Where non-metals are placed? Towards right side. Where metalloids are placed? Between metals and non-metals. Where noble gases are placed? In the extreme right, in the 18th group. Elements का 4 mainly group होता है: metals, non-metals, metalloids and inert gases, noble gases. तो metal किस तरफ है periodic table में? sir, left Left and middle, left, middle and bottom. bottom. Non-metal किधर है? Towards Right. right. Towards right. Between metals and non-metals? Metalloids. 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 And extreme right? Neon gas. Extreme Noble right? gas. नोबल गैस। तो मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दिया है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा आइडिया आपको रखना होगा ये समझने के लिए। सो लुक एट सर पोजीशन बताते वक्त तो हाइड्रोजन को एक्सेप्शन में रखना पड़ेगा ना? पोजीशन बताते हुए किसको एक्सेप्शन में रखना होगा? हाइड्रोजन। नहीं, एक्सेप्शन में नहीं रखना है। ये बताना कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अबव ग्रुप 1। अदर देन हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। हाइड्रोजन को फिर वहां क्यों रखा? क्योंकि हाइड्रोजन उन मेटल्स के जैसे पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उन मेटल्स के जैसे। ठीक है। ओके सर। Modern periodic table, also called long form of periodic table, is based on what? Modern periodic law. Modern periodic law हम लोग जानते हैं। Modern periodic law states what? The properties of the elements are the periodic function of their atomic क्या? The properties of elements are periodic function of their atomic number. This table, also known as long form of periodic table, the elements are arranged in the order of increasing atomic numbers, and it is divided into groups and periods. Group और period हम लोग जानते हैं। Vertical columns are called groups. Horizontal rows are called Periods. periods. तो पहले group के बारे में थोड़ा discussion. How many groups are there? 18. 18. They are numbered from 1 to 18, and each group independent group. क्या यहाँ पे 18 सब ग्रुप का वो है क्या थ्योरी? जैसे मेंडलीव No, में था ए और बी सब ग्रुप? No, नहीं। sir. Unlike Mendeleev periodic table, there are no subgroups. A few important characteristics of the elements present in the groups. First one, the elements present in a group are separated by definite gaps of atomic number. एक ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर का गैप यही मैजिक नंबर ही होता है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो 1 + 2, 3 + 8, 11 + 8, फिर वापस आप 18 प्लस करो, कितना आएगा? 37।
37, फिर वापस 32 प्लस करो, कितना आएगा? 69, कितना आएगा? सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक और है यहाँ पे फ्रांसियम, सॉरी वन मोर इज देयर, फ्रांसियम। सो यहाँ पे कितना आएगा? 50, सॉरी कितना आ रहा है टोटल सर करने में? 69, 69। फर्स्ट का हाइड्रोजन का कितना था? 1, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 8 हो गया 11, 11 प्लस 8 हो गया 19, 19 प्लस 18 हो गया 37, 37, 19 प्लस 18 37, 37 प्लस 30 वापस 18, वापस 18 है, एक एलिमेंट में भूल गया था उस वक्त। वापस 18 प्लस करने से क्या आएगा? सर 55, 55। देन 32 कितना? 87, 87। तो इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर में गैप ये है कि नहीं? 2, 8, 8, 18, 18, 32। हाँ सर, सभी ग्रुप में ऐसा ही पैटर्न है, सभी ग्रुप में ऐसा ही पैटर्न है, गैप यही मिलेगा आपको। इसीलिए इन 4 नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर, क्योंकि इन 4 नंबर के बाद, इन 4 नंबर का गैप के बाद में प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? रिपीट, Repeat. There are 18 independent groups in the long form of periodic table. These are numbered from 1 to 18. The elements present in a group have the same number of electrons in the valence shell. इनका वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? चेक कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 1। सो अगर मैं बोलूं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 1। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 8, 1। KLMN। सो क्या देखा आप लोगों ने? ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? The elements present in a group have the same number of electrons in the valence shell of their atoms. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर, कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब एलिमेंट में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में 1, 1। The elements present in a group have same valency. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा तो वैलेंसी भी सेम होगा। वैलेंसी कैलकुलेशन करना आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Valency is equals to number of valence electrons if it is 1 to 4. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से लेकर 4 तक होता है तो वैलेंसी वही होगा, लेकिन 4 से ज्यादा भी तो हो सकता है। तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स if it is 5 to 8। तो आपको अगर मैं यहां पे पूछता हूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप क्या बोलोगे? 281, 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? 1, 1, 1। अगर मैं आपको यहां पे पूछता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, 26। अगर मैं पूछता हूं ऑक्सीजन का वैलेंसी बता दो, 2, 2, कैसे निकालोगे? यहाँ आउटरमोस्ट शेल 6 में 6 minus है, 4, 8 माइनस 6। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ इट इज 5 to 8। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8 के बीच में है कि नहीं? 6 है कि नहीं? हाँ सर, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होगा, 5 या उससे ज्यादा होगा, तो उस नंबर को हम लोग 8 से सब्ट्रैक्ट करके वैलेंसी पता कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा? 2, 2। सो यहाँ जो स्टेटमेंट है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। इज इट करेक्ट? yes sir, The elements present in group have identical chemical properties. क्या इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसा होगा?
क्या इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसा होगा? हाँ Yes, sir. सर कैसे बोल सकते हो आप केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा? Because of the valence electrons. Because of the valence electrons, they have similar electronic configuration, they have same number of electrons in the valence shell. अगर दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉम्स का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा, लेकिन अगर उनका वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, then their electronic configurations are said to be similar. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने से हम लोग बोल सकते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। क्या सिमिलर है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये डिस्कशन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अगर मैं आपको पूछता हूं यहाँ पे कि there are three elements x y z, there are three elements x y z, ओके, एक का एटॉमिक नंबर है 6, एक का एटॉमिक नंबर है 14, एक का एटॉमिक नंबर 6, एक का 6, एक का 14 और एक का 7. And if I ask you which two elements are having similar chemical properties? X and Y. X X and and Y. एंड Y. वाई X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4 और Y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 284. Z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 5 25. तो अब हम लोग आराम से बता सकते हैं which two elements are having similar properties, X and Y. Y. कैसे बोल सकते हैं ये कंफर्मेशन के साथ? वैलेंस Because they have इलेक्ट्रॉन same number of valence. सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होता है उनका वैलेंसी सेम होता है, एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होता है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है, एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है। ओके, तो अब मेरे लिए सब कुछ थोड़ा इजी हो गया है कि नहीं? मुझे कोई बता दे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो मुझे अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? फ्लोरीन का अगर नहीं, मैं सर। पता लगा देता हूँ फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो मुझे क्लोरीन का कोई पूछेगा तो अब डायरेक्ट बता सकता हूँ कि नहीं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाट इज देयर वैलेंसी? 1। एक्सट्रीम राइट में जो नोबल गैस वाला ग्रुप है, ग्रुप 18, उनमें से हमको पता है कि नियॉन इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट इज इनर्ट। तो एक के बारे में पता होने से बाकी सबका नॉलेज हो गया कि नहीं? Yes sir. तो इस तरह पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन व्हाट? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इट मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर एंड सिस्टमैटिक। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट पीरियड्स के बारे में। कितना पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7. 7 periods. Okay, and different periods have different number of elements present. Different, समझ में आया ये बात? डिफरेंट पीरियड्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप मुझे बता सकते हो पीरियड 1 में कितना एलिमेंट्स है? 7 पीरियड 1 में, पीरियड 1 मतलब पीरियड द हॉरिजॉन्टल रोज, ये कंफ्यूजन क्लियर रखना। पीरियड हॉरिजॉन्टल रो, तो फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट? 2 सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट? 8 पीरियड में कितना एलिमेंट? 8 फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट? 18। ओके, तो इस तरह साइंटिस्ट ने बोला कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आल्सो इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? के में 1। तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा है? K हाइड्रोजन का वैलेंस शेल के, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2 हाँ, मैक्सिमम। तो इसका के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकता है, इसलिए फर्स्ट में कितना एलिमेंट? 2 elements. लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 1. 2 1 के एल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है?
8 8, 8 तो यहाँ कितना है 8 8, 8। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, के एल एम। एम में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 8, नहीं, मैक्सिमम 18 आ सकता है, 2n² फॉर्मूला। किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूला पे। के के लिए n का वैल्यू होता है 1, एल के लिए n का वैल्यू होता है 2, m के लिए n का वैल्यू कितना होगा 3। तो m शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 18 18। लेकिन यहाँ पे m आउटर मोस्ट शेल है कि नहीं, यस सर और आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता नहीं हो सकता। तो इसीलिए थर्ड पीरियड में भी कितना 7 कितना एलिमेंट 8 8 सर ये वाला चीज वापस समझाए ना, आप क्या बोला अभी सर? समझा देते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है जय सर 2 है ना। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है कि नहीं उसका, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक हाँ, सर। कॉन्फ़िगरेशन में के शेल से ज्यादा शेल का रिक्वायरमेंट है क्या नहीं सर। नहीं। तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर 1 1। के में मैक्सिमम कितना हो सकता है सर 2 2। तो पहला पीरियड में 2 ही मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है फर्स्ट पीरियड। हाँ सेकेंड पीरियड में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया सर 2 1 2 1। एल शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर 8 8। तो इस सेकेंड में कितना है एलिमेंट्स सर 1 नहीं, सर सेकेंड सेकंड पीरियड में एलिमेंट कितना है सर 8 ना 8 8। थर्ड में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 बताया कि नहीं। हाँ इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है एम। सर M आउटर मोस्ट एम। किसी भी शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, क्योंकि के के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 × 1²। एल के लिए ये हो जाएगा 2 × 2²। एम के लिए हो जाएगा 2 × 3²। तो 2 × 2² कितना होता है 8। 2 × 3² कितना होता है 18। 2 × 3² 18 होगा कि नहीं। तो एम शेल में आउटर मोस्ट हाँ, सर। एम शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर 18 18 होना चाहिए। लेकिन इस केस में लिथियम का सोडियम का केस में एम शेल आउटर मोस्ट शेल है कि नहीं। सोडियम का केस में विच इज द आउटर मोस्ट शेल सर एम शेल ना। तो एम शेल में हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल और है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। आउटर मोस्ट शेल में किससे 8 से ज्यादा नहीं हो ज्यादा नहीं सकता 8 से ज्यादा नहीं हो 8 सकता। तो इसीलिए थर्ड पीरियड में भी कितना एलिमेंट है सर 8 8 है। अब ये जितना भी आज का हम लोग का डिस्कशन है या नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन होगा ये सब ये के एल एम एन वाला कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है कि नहीं बेस्ड। हाँ सर यस सर हम लोग तो सभी इसी का बेस पे डिस्कशन कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो सब कुछ 18 से लेके 20 एलिमेंट्स तक ही अप्लाई होता है सब रूल्स। उसके बाद बहुत गड़बड़ है सिस्टम में। उसके बाद हायर क्लास में जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन से है। हायर क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एसपीडीएफ यूज किया जाता है, इनको ऑर्बिटल्स बोला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो उस बेसिस पे सारा एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही आप क्लास 11 में पहुंचोगे तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का KLMN वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं आएगा। तो हम लोग जो क्लास 10 में डिस्कस कर रहे हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे अप टू विच एलिमेंट सर 20 20, और ज्यादा अच्छा बोले तो हम लोग 18 बोल सकते हैं। मतलब 18 20 तक ही सब रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है। तो मैं ये जो इतना डिस्कशन किया अभी उसका मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूं। अभी
ये क्यों डिस्कस किया हम लोगों ने? इसके बारे में जानने के लिए, पीरियड्स के बारे में। ठीक है, तो पीरियड्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं वापस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज हाउ मेनी पीरियड्स? 7. 7 periods. Okay, and different periods have different number of elements. अलग अलग पीरियड में अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं? कोई 2 पीरियड में सेम भी हो सकता है, लेकिन जनरली डिफरेंट नंबर। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। ये बात समझ में आया? एक पीरियड में जो एलिमेंट्स है, एक पीरियड में उनका इलेक्ट्रॉनिक शेल का नंबर सेम रहेगा। जैसे अगर हम स्टार्ट करते सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब एक ही पीरियड का मेंबर है। कौन सा पीरियड का मेंबर है, बता सकते हो? सर थर्ड। थर्ड। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, एल्यूमिनियम का 283। इनमें नंबर ऑफ शेल्स बता दो तो कितना है नंबर ऑफ शेल्स? सर 3। 3। कौन सा 3? KLM। इसमें भी क्या होगा? KLM। इसमें भी क्या होगा? KLM होगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। फिर यहाँ स्टेटमेंट, इसको समझने की कोशिश करना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज फिक्स्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन द वेरियस शेल्स ऑफ एन एटॉम। ये बुक का सेंटेंस है, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे वैलेंस शेल लिखा हुआ रहता था। The number of elements in a period is fixed by the maximum number of electrons which can be accommodated in the valence shell of the atom. अभी हम लोगों ने डिस्कशन करके देखा कि नहीं, सारा बात किससे रिलेटेड है? सर वैलेंस है। Period. Valence shell. Okay, and this can be determined by the formula 2n square. किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से? कौन सा फॉर्मूला से? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं तो के शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। के शेल में। एल शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8. 8। एम शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18. 18। ठीक है, तो ये जो थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स होना चाहिए कि होना चाहिए था कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो के एल एम, अगर मैं थर्ड एलिमेंट का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूं तो विच इज द वैलेंस शेल? M. एम शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है एज पर दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला से? 18। 18। लेकिन एक्चुअल में एम शेल पीरियड 3 का जितना भी एलिमेंट है वो उसमें एम शेल आउटरमोस्ट शेल है कि नहीं? हाँ सर। Yes sir. उस शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रियल में आएगा? मैक्सिमम हो सकता है 18, लेकिन आएगा कितना मैक्सिमम? 8। 8 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो इसीलिए थर्ड पीरियड में भी कितना एलिमेंट्स है? थर्ड पीरियड में इस रूल से होना चाहिए था 18, लेकिन थर्ड पीरियड में भी कितना एलिमेंट है? 8। अब आपको एक स्पेशल बात क्या बताता हूं कि जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है वो कौन सा गैप में हो रहा है? 2, 8, 18 एंड 32। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा है। कौन सा गैप में? मैंने एक ग्रुप से समझाया था आपको। कौन सा गैप में? 2, 8, 18 एंड 32। Representing the number of elements in various periods actually corresponds to the maximum number of electrons which can be put in the various cells of the atom. और various से ज्यादा प्रिफरेबल वर्ड यहाँ क्या है? वैलेंस। The figure 2, 8, 18, 32 एक्सेट्रा, ये जो 4 नंबर है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 4 नंबर एलिमेंट्स का नंबर ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीरियड 1 में कितना एलिमेंट्स? सर 2। फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, ऐसे है कि नहीं? तो ये 4 ही नंबर यूज हो रहा है कि नहीं रिपीटेशन के लिए? हाँ सर। ठीक है, so the figure 2, 8, 18, 32 etc. representing the number of elements in various periods actually correspond to the maximum number of electrons which can be put in the various shells of atoms. अगर इन जनरल हम लोग बात करें कि एक एटॉम में डिफरेंट शेल्स होता है कि नहीं? Yes sir. तो के शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2. एल शेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8. एम शेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 18.
और इसी तरह n शेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 32 32। तो मतलब ये समझाने का कोशिश किया कि ये चार जो नंबर है, इन चार नंबर के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? रिपीट रिपीट हो रहा है। ओके, और पीरियड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो यही नंबर क्यों आ रहा है? 2, 18, 32 ये सब क्यों आता है? क्योंकि इनके बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा है। इनके बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ सर, लेकिन फोर्थ पीरियड में अगर हम लोग उसी लॉजिक से देखें कि KLMN में मतलब हाँ पोटेशियम हाँ, तो 32 होना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको क्लियर कर दिया ये सारा बात। अप्लाई जो प्रॉपरली होता है 20 एलिमेंट्स तक, 18 एलिमेंट्स तक। उसके बाद जैसे ही डिस्कशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को भूल जाओ। ठीक तो है, सर मतलब ये कितना एलिमेंट्स होगा एक पीरियड में, वो हम लोग को सिर्फ थर्ड थर्ड तक ही जानना है, बाकी याद रखना है। याद रखना होगा किसमें कितना है। हाँ सर। सर मतलब इसमें क्या क्या याद करना होगा इस पार्ट से? इस पार्ट से तो इतना कुछ याद नहीं करना है, बस ये बेसिक क्लियर रखना है कि एटॉमिक नंबर चूज करना चाहिए या एटॉमिक मास होना चाहिए। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर सर ग्रुप एक में बार हेलो सर एक बार गैप वाला बात आप फिर से समझ सकते हैं? कौन सा वाला? ये वाला? जो गैप वाला, ये डिस्कशन जो हम लोग किया था अभी। मतलब खाली ये गैप वाला जो है ना कि हाँ 8 हाँ, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए कि ग्रुप 1 का एलिमेंट्स का अगर बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम था कि नहीं? तो पहला एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है तो थर्ड एलिमेंट लिथियम हो गया कि नहीं? थर्ड अगर लिथियम है तो 11th सोडियम है। तो गैप कितना है इसमें? 2। इधर गैप कितना? 8। इधर गैप कितना? 18। इधर गैप कितना? 18। इधर गैप कितना? सॉरी, इधर 8, फिर 18, इधर 18 और इधर 32। तो प्रॉपर्टीज जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो देखा गया कि इन गैप के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे हैं। कौन सा गैप के बाद? ये तो सब एलिमेंट्स के लिए, ये भी वो ओनली 20 के लिए है। ये सब एलिमेंट्स के लिए है, लेकिन हम तो बोलते हैं कि हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन से डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 20 एलिमेंट्स तक ही हम लोग फोकस करेंगे। एग्जाम में उतना ही चाहिए। एग्जाम में आपको अगर ये बोल दिया गया कि ये सारा एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी एक जैसा है क्या, तो अब आप बता सकते हो क्योंकि आपको एक नॉलेज है कि ग्रुप में एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी जैसा है, बाकी सबका प्रॉपर्टी वैसा हो सकता है कि नहीं? तो रीजन क्या देना पड़ेगा अगर रीजन पूछे तो? रीजन होगा दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक है। आ गया समझ में? हाँ सर। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है, इनमें से कोई भी एलिमेंट का आप नाम लोगे ना, मैं उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकता हूँ पीरियडिक टेबल देखे बिना। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 287। तो इसका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर होगा 10 + 7 दैट इज 17। तो मैं आपको दिखाता हूं, क्लोरीन 17th ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल का। देखो आप, क्लोरीन पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप में है कि नहीं? हाँ है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 और इसका ग्रुप नंबर है 2। आप देखो पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम आपको सेकंड ग्रुप में दिखाई देगा, है कि नहीं? ठीक है, तो आप इस तरह ग्रुप नंबर जान सकते हो। तो ग्रुप नंबर जानने का क्या है फॉर्मूला? देखो यहाँ पे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ इट इज 1 और 2। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 या अगर 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 1 या 2 होता है तो दैट नंबर विल बी ग्रुप नंबर।
लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 और 2 होगा, ये तो गारंटी नहीं है, 2 से ज्यादा भी तो होता है। क्लोरीन का 2 से ज्यादा है कि नहीं? क्लोरीन में वैलेंस हाँ सर। इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 से ज्यादा है, तो आप 10 प्लस कर देना। ठीक है। So group number is equal to the number of valence electron if it is 1 or 2, and group number is equals to 10 plus number of valence electron if it is 3 to 8. Okay, 3 to 8. तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. तो आप मुझे वंशिका गोगोई के कैन यू टेल मी व्हिच इज द ग्रुप नंबर? वंशिका गोगोई, group number for carbon? Vanshika. Mahi Sharma, यस सर। ग्रुप नंबर क्या होगा? समझ में आया माही? कंफ्यूजन है? माही शर्मा, यस सर। कंफ्यूजन है? हाँ सर, ये वाला वापस समझाइए तो एक बार। ओके, मैं समझा देता हूँ। मैंने ये बोला कि ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हैं। हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर चेक करना है। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 1 और 2 हुआ तो वही नंबर ग्रुप नंबर होता है। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ इट इज 1 और 2, if it is 1 or 2, and group number is equals to 10 plus number of valence electron if it is 3 to 8. तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना मिला माही? 2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 2 होगा तो ग्रुप नंबर भी 2 होगा। यस सर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 2 से ज्यादा हुआ तब क्या करेंगे हम लोग? उसमें 10 प्लस करके ग्रुप नंबर पता करेंगे। तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना हुआ? 17. 17। अब कार्बन का केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ग्रुप नंबर क्या होगा? 14। 14. गुड। 10 प्लस 4 14 होगा। तो अगर मैं बोरॉन का पूछूं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कोई बता पाएगा? सर 5। 5. बोरॉन का 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3. तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 13. 13. ओके। सो पोटाशियम जो एटॉमिक नंबर 19 होने से 28 81. सो ग्रुप नंबर क्या होगा? 1. ग्रुप नंबर क्या होगा? 1. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 2. लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये नोबल गैस है और नोबल गैस का में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नोबल गैस का केस में रूल क्या अप्लाई नहीं होगा? हीलियम का केस में नहीं होगा। नोबल गैस कौन सा ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल का? 18। आया समझ में? यस सर। तो मैंने ग्रुप नंबर कैसे पता लगाता वो बताया आपको। अब मैं आपको बताता हूं पीरियड नंबर कैसे पता लगाएंगे। पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स। सिंपल है, ये ज्यादा इजी है। आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो KLM कितना शेल है? 3 शेल। शेल। तो देखो आपको मैग्नीशियम 3 शेल मतलब पीरियड नंबर 3। तो मैग्नीशियम क्या पीरियड नंबर 3 में दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ सर। ये पीरियड नंबर 3 है कि नहीं? ये पूरा पीरियड कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 3 में दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस सर। ओके। हाँ सर। सो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का रूल समझ में आ गया सबको, हाउ टू फाइंड आउट। और ये भी अच्छा से अप्लाई होगा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मान लो आप। ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देयर इज एन एलिमेंट x whose एटॉमिक नंबर 16, और आपको अगर पूछा जाए इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताओ, तो अगर मैं पूछता हूं दिशान जैन, बता पाओगे? एलिमेंट x विथ एटॉमिक नंबर 16। दिशान, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है?
Dishan, Yashvi Khemani. Yes, sir. Sir, it's period. Sir, its group number is 16 and period number is 3. Group number 16 and period number 3. बाकी सबको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। इसका अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक में शेयर कर दूंगा, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर ज्यादा एग्जांपल्स के साथ, तो आप उसको भी देख पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट्स क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या मेरिट्स है। अच्छा बात क्या है कि द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर लिंक्ड विथ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक्ड है कि नहीं? यस और नो, ये तो बता सकते हो। अभी अभी हम लोगों ने पोजीशन Yes, का sir. पता लगाया, इलेक्ट्रॉनिक Yes, कॉन्फ़िगरेशन। sir. The electronic configuration of the valence shell of the atom determines chemical properties of the element. It also explains the reason for the periodicity and properties. Reason of the periodicity, properties repeat होता है, ये बात बोला कि नहीं Yes, sir. हेनरी मॉसली ने। लेकिन प्रॉपर्टीज रिपीट होने के पीछे रीजन क्या है? रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उनका प्रॉपर्टीज रिपीट होने के पीछे रीजन है कि उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होना। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है कि नहीं? अगर उन गैप के बाद 28, 18, 32, हम लोगों ने लिथियम और सोडियम या पोटेशियम साथ में क्यों रखा? क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, सोडियम का 281 और पोटेशियम का 2881। सो उन गैप्स के बाद रिपीट क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज रिपीट होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक्ड है कि नहीं? प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक्ड है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes. प्रॉपर्टीज रिपीट होने के पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? Yes, हाँ, sir. sir. तो यहाँ पे ये बिल्कुल। बोला गया कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिस पे टेबल बना हुआ है और ये अच्छा से एक्सप्लेन कर सकता है अबाउट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट है ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, द आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज बीन डिस्कार्डेड। तो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है सब ग्रुप वाला। देन वन पोजीशन फॉर ऑल आइसोटोप, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं आया। कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, C612, C613 एंड C614। तीनों के लिए अलग अलग बॉक्स चाहिए, एक ही बॉक्स या एक ही पोजीशन। आइसोटोप्स के लिए सेम पोजीशन में काम हो जाएगा या अलग अलग पोजीशन का जरूरत पड़ेगा? सर अगर एटॉमिक मास देखिएगा तब तो अलग अलग चाहिए। एटॉमिक मास, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास से बना ही नहीं ना, किसके हाँ सर, बेसिस पे नंबर बना? के लिए तो सेम ही रहेगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये मेरिट है कि नहीं कि एक ही जगह पे इसको रखना है? हाँ सर। मेंडेलिफ वाला में तो कंफ्यूजन था। मेंडेलिफ का टेबल बना था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अगर एक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे बनेगा तो आइसोटोप्स को क्या एक ही बॉक्स में रख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सर। नहीं, एटॉमिक नंबर का बेसिस पे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व Yes, हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ हो गया सर। सर। Yes, sir. ओके, पर सर मतलब आइसोटोप अलग अलग थोड़ी है पीरियोडिक टेबल में इसमें। नहीं है। आइसोटोप अलग अलग कैसे होगा? आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसा होता है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। इन तो तीनों मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड, आवाज नहीं आ रहा तनिष। मतलब क्या वो सर वापिस एक बार बोल सकते हैं आप? मैं बोल रहा हूं कि आइसोटोप जो है, तीनों एक एलिमेंट का जितना भी आइसोटोप हो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये बताओ। डिफरेंट होगा ना एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। 9 का कॉन्सेप्ट भूल गए होता है। आइसोटोप्स आर द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाँ डिफरेंट मास नंबर था। हाँ, तो नीचे मैंने तो लिख भी दिया था, वो देख के भी आप बता सकते थे। तो तीनों एटॉम्स का, आइसोटोप्स का जो 3 एटॉम यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है या डिफरेंट? सेम है सेम है। सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा कि नहीं? सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा कि नहीं? हाँ समझ गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने से उनका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर सेम होगा कि नहीं? हाँ पोजीशन सेम होगा कि नहीं? हाँ।
पोजीशन सेम होगा मतलब एक ही बॉक्स मिला उनको, आया समझ में? हाँ एक बॉक्स में। One position for all the isotopes of the element is justified since the isotopes have the same atomic number. For 3 isotopes of the element hydrogen, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर क्या है उनका? हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, H11, H12 एंड H13। पहला का नाम है प्रोटियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम, तीसरा का नाम है ट्रिटियम। हम लोग जो बोलते हैं ना हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ये पहला वाला है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। एटॉमिक नंबर सेम होने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, पोजीशन भी सेम होगा। हाइड्रोजन का पोजीशन एक ही जगह पे है कि नहीं? Yes, sir. क्या हाइड्रोजन का डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए अलग अलग पोजीशन का जरूरत पड़ेगा क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? No, नहीं sir. सर। Okay. Then the position of certain elements which were earlier not proper in Mendeleev's periodic table are now justified because it is based on atomic number. कुछ anomalous pair था कि नहीं मेंडेलीव का टेबल में? Yes, sir. एक एलिमेंट को पहले रखा जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में रखा, लेकिन वो पोजीशन बाद में जस्टिफाई हो गया। जब एटॉमिक नंबर से अरेंज किया तब तो ठीक मिला। Argon precedes what? Potassium, because atomic number of argon is what? 18 and that of potassium is 19. तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल में जो एनामलस पेयर वाला प्रॉब्लम था वो भी बाद में क्या हुआ? जस्टिफाई हो गया। जब किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने अभी बात किया मेरिट्स का, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट्स भी है। ओके, डीमेरिट्स बहुत है लेकिन हम लोग 2 का ही बात करेंगे अभी। 2 defects in the modern periodic table. The position of hydrogen is not fixed till now. अभी तक हाइड्रोजन का पोजीशन को लेके कंट्रोवर्सी है। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। और ग्रुप 1 में तो बाकी सब एलिमेंट तो मेटल है, समझ में आया? हाँ अब सर। वहां रखना ये भी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके साथ ही मिल रहा है। क्योंकि पूरा जो टेबल बनाया उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर टेबल को ठीक से देखो आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें ये क्या किया है कि लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को तो अलग से रख दिया है। ये एलिमेंट्स को अलग से रखा है, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स को अलग से रखना, उनको अलग से रखना भी एक डिफेक्ट जैसे देखा जाता है। द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स हैज नॉट बीन गिवन इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और उसका रीजन मैंने आपको समझाया कि अंदर रख भी नहीं सकता। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में तो उनको वहीं पे होना चाहिए कि नहीं? अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं तो उनका पोजीशन वही होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, होना चाहिए ना, लेकिन वहां पे नहीं, अलग से रखना पड़ा क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज एकदम अलग है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, हायर क्लास में पता चलेगा आपको, बाकी सबसे मैच ही नहीं करता, तो इसीलिए इनके लिए अलग से ग्रुप बना, अलग से पीरियड बनाना पड़ा 2 नीचे। क्या नाम है उन पीरियड्स का? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ऐसा नाम क्यों दिया गया? तो आप देखो यहाँ पे, ऐसा नाम देने के पीछे भी रीजन है। आप देखो कि 57th एलिमेंट कौन सा था? लेंथानियम। और 57 से 71 तक जो एलिमेंट है, तो ये लेंथेनम का सीरीज हुआ कि नहीं? फिर ये एक्टिनियम AC है, कौन सा नंबर? 89। 89 वाला सीरीज किसका सीरीज है? एक्टिनियम का सीरीज, इनको बोला जाता है एक्टिनाइट। लेंथेनम का सीरीज, इनको बोला जाता है लेंथेनाइट। आया समझ में? यस सर। तो हम लोग का जो टारगेट था आज का क्लास का वो हो चुका है ओवर। हम लोग फुल फोकस किया है किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपका टेक्स्ट बुक में जितना इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। और नेक्स्ट क्लास
we will complete this chapter. Okay, so आज के लिए sufficient, आप लोग लीव कर सकते हैं.